Hello everyone, I hope you all are doing well. At very outset, let me seize this opportunity to express my sincere gratitude to one and all. You believed in me, I'm very thankful for this. In today's video, I will be talking about the most important works, movements, and most important writers from 14th century to neoclassical age. Prior to that, let me enunciate or make you people aware about something indispensable on the part of aspirant. See, everybody is weak at beginning. So am I. I'm the part of this collective conscience and society. To be weak at beginning is not a problem. But not having the intent to learn the things is problem. कहने का मतलब क्या है कि to be weak at very outset is not a problem. Everybody is weak. But if you are not having intent to learn the things, if you are not having intent to embrace the difficulties, if you are not having intent to look upon your flaws and mistakes, then there is definitely a serious problem on the part of aspirant. What I mean to say is that embrace your mistakes, introspect upon the acts, be genuine with your actions. If you are doing all such things, believe me, primarily you are going to be one of the most successful person in the world, and prior to that you are going to be a good human being. And we all know, if we possess something good or worthwhile, automatically rest of the things will chase you in a way. Success will chase you. Be disciplined, don't have ill will for anybody, have intent to learn the things, have intent to improve yourself. All right. तो ज्ञान मैंने काफ़ी बांट लिया, अब मैं सिलेबस की बात करूँगा। 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 14th सेंचुरी से व्हाट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. As we all know, there are 3 to 4 movements in 14th century. First is Black Death, then the Great Plague, and alternatively that is called as Black Death. And thirdly, there is Peasant Revolt. And there were 3 rulers in 14th century. First was, Edward III, then Richard II, and Henry IV. Besides, there is a concept of Bible. The literature is, surrounding the church as well. As we all know, in 14th century, the church was, hotbed of profligacy and materialism. रेफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा. पहले मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो यू शुड हैव अ क्लियर कट acquaintance with the dates of peasant revolt, Black Death and the 100 Years War. उसके बाद इन मोमेंट्स से इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको पीजेंट रिवोल्ट का ऑल्टरनेट टाइटल और पीजेंट रिवोल्ट के हीरोज़ कौन थे उसका नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर राइटर्स की बात करें तो जोफ्री चौसर इज़ देयर, विलियम लैगलैंड इज़ देयर, जॉन गॉवर इज़ देयर. We all know Canterbury Tale is most important text. And go through the character of knight, prioress, squire, nun priest, nun prioress, parson, summoner, nun priest, and wife of Bath. Apart from this, you should have a surface level knowledge of Troilus and Cresside, the House of Fame, the Legend of Good Women, and the Parliament of Fowls and the Book of Dishes. Secondly, if we take John Gower, तो जॉन गॉवर के केस में जो जॉन गॉवर के 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, स्पेकुलम मेडितांतिस, वॉक्स क्लामांतिस एंड कन्फेशो अमांतिस, इनको सरफेस लेवल पे पढ़ के जाना है.
विलियम लैगलैंड की बात करूं तो पियर्स द प्लोमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ के जाना है। उसका फॉर्म क्या है, वो किस तरीके का प्ले है, विजन्स किसकी हैं, कैंटोज कितने हैं, पायर्स जो हैं व्हाट ही सिग्निफाइज। इसके बाद 14th सेंचुरी में लास्टली अगर एक एस्पिरेंट को एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से जो कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है, दैट इज़ वी ऑल शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंग्लिश चौसेरियंस एंड स्कॉटिश चौसेरियंस। कौन सा मेंबर इंग्लिश चौसेरियन ग्रुप के अंदर आता है और कौन सा मेंबर स्कॉटिश चौसेरियन ग्रुप के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एज में जंप करें तो देयर वाज अ बैरन पीरियड, एंड बैरन पीरियड के अंदर देयर वाज नॉट अ फ्रूटफुल और much fertile literature produced by writers, because as we all know, the writers during that era were associated with court and they were also the warriors. Likewise, Chaucer actively participated in the 100-Year War, all right. तो वहाँ पे आपको टोटल्स मिसैलेनी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का इम्प्लीमेंटेशन और इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है। द वॉर ऑफ रोजेस किन दो हाउसेस के बीच में हुई थी, रोज़, रेड रोज़ और वाइट रोज़ किसके सिंबल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद हमारा एक मोस्ट फ्रूटफुल टाइम पीरियड आता है, दैट इज़ रेनेसा, एंड रेनेसा एज वी ऑल इट वाज रिवाइवल एंड रिबर्थ ऑफ द क्लासिकल कल्चर एंड एंटिक्विटी। रेनेसा पीरियड से पेंटिंग जो फेमस हुई हैं, मोनालिसा इज़ देयर, द बर्थ ऑफ एडम एंड ईव इज़ देयर, द बेकस इज़ देयर, ऑल राइट। लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स के टाइटल्स को पढ़ के जाना है। रेनेसा की बात करें तो रेनेसा के जो मेजर फीचर्स हैं, लाइक देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम थियोसेंट्रिक टू होमोसेंट्रिक। आई मीन देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द रिलीजन टू ह्यूमनिज्म। द ह्यूमन बीइंग वाज द सेंटर ऑफ the interaction or the center of the writing of the center of the nucleus of the writing of the writers. Scholasticism was shunned by the writers. Papal authority was revolted. Greek scholars were polished. तो वहाँ से टॉमस एलियट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, डेसिडेरियस इरास्मस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, टॉमस मोर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टॉमस मोर का यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिडेरियस इरास्मस की बात करें तो प्रेज ऑफ फॉली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ फर्स्ट लैटिन डिक्शनरी, टॉमस एलियट को क्रेडिट जाता है, वो पढ़ के जाना है। इसके बाद जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है, दैट इज़ एलिजाबेथन एज, द गोल्डन ईरा, द शेक्सपियरियन एज और द 16th सेंचुरी। विलियम शेक्सपियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम शेक्सपियर की जो 4 मेजर ट्रेजेडीज़ हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। Guys, I'm remembering a couplet by William Shakespeare in he asserted this statement in Macbeth, and this is a dialogue on the part of King Duncan. We usually say that मैंने तेरा चेहरा पढ़ लिया है। गाइज, किसी का चेहरा पढ़ा नहीं जाता है। शेक्सपियर ने देखें क्या खूबसूरत बात कही है कि देयर इज़ नो आर्ट दैट कैन फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। आप इस स्टेटमेंट पे कंटम्पलेट करिए ज़रा, और हम सबको चेहरे पढ़ना, जजमेंटल होना छोड़ देना चाहिए। वर्ड्स हैव एन इमेंस पावर इफ़ यू आर हैविंग इंटेंट टू चेंज योर सेल्फ। सो लेट बी कम टू द पॉइंट। Merchant of Venice becomes very important. Romeo and Juliet becomes very important. And historical plays कौन से हैं, रोमन प्लेज कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सोर्सेज क्या हैं, जिसमें हॉलिनशेड क्रॉनिकल का कॉन्सेप्ट आता है, प्लूटार्क लाइव्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्वीन एलिजाबेथ किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शी बिलोंग्स टू ट्यूडर डायनेस्टी। Why 15th or I can say 16th century was called as golden era? कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीइंग एन एस्पिरेंट पता होना चाहिए आपको, वो पढ़ के जाना है।
इसके बाद फिलिप सिडनी की बात करूं तो अर्काडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफेंस ऑफ पोइजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एस्ट्रोफेल एंड स्टेला बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के अंदर कितने सॉनेट्स हैं, कितने सॉन्ग्स हैं, किसको डेडिकेट किए इंपॉर्टेंट रहता है। अर्काडिया किसको डेडिकेट किया है, अर्काडिया का टाइटल कहाँ से डिराइव्ड है, इंपॉर्टेंट है। फिलिप सिडनी के बाद एडमंड स्पेंसर की बात करें तो एडमंड स्पेंसर पे जितनी भी क्रिटिकल कमेंट्री हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ही वाज रेफर्ड एज पोइट बाय चार्ल्स लैम, एंड चार्ल्स लैम इज़ अ फेमस रोमांटिक एसेस्ट एंड इज़ मेनली नोन फॉर द एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया की डेट्स पढ़ के जानी है। फेरी क्वीन becomes very important, amority becomes very important, Mother Hubbard's tale less important, Shepherd's calendar is very important, Colin Clout come home again becomes very important, and the origin of Colin Clout as a character becomes very important. फेरी क्वीन को लेके एक वीडियो आप पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। फेरी क्वीन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो एपिक इनकम्प्लीट पोम है, एल्गोरिकल इन फॉर्म है, किंग आर्थर हीरो है उसके। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फेरी क्वीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 6 कैंटोज कंप्लीट हैं, उन कैंटोज में किस नाइट ने किस वर्चू को रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो फेरी क्वीन का प्रेफेस था, दैट वाज सेंट बाय एडमंड स्पेंसर इन अ लेटर फॉर्म टू वन ऑफ हिज क्लोज कंटेम्परेरी। उसका नाम इंपॉर्टेंट है, वॉल्टर रिले है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, जैकोबियन इरा की तरफ चलें, तो बेन जॉनसन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन वेबस्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल, बोथ आर द प्लेज रिटन बाय जॉन वेबस्टर। हालांकि जॉन वेबस्टर काफ़ी देर से एग्जाम्स में पूछा नहीं जा रहा है, बट पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेन जॉनसन का वोल्पोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केमिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एपिसीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास रेस्टोरेशन ईरा आता है। रेस्टोरेशन ईरा के अंदर ड्राइडन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज ड्राइडन इज कंसर्न, यू नो, ही was appointed as first official poet laureate. And Ben Jonson and William Davenant. Ben Jonson was first unofficial poet laureate, and he was followed by William Davenant. He was also second unofficial poet laureate. There is a clear-cut difference between poet laureate and Nobel laureate. Nobel laureate is a person who is bestowed with Nobel Prize. So Dryden was first official poet laureate, and he was appointed. He was given the status of poet laureateship in the year 1668. Again, becomes very important. Astia Redux, Annus Mirabilis, Absalom and Achitophel, Macflackney, The Hind and the Panther, The Fables Ancient and Modern, Aurangzeb, Trenic Love, All for Love, Tempest, and most importantly, an essay on dramatic poesy becomes very important. इसके बाद अगर आगे चल के बात करें तो जॉन मिल्टन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन मिल्टन को हम बिना पढ़े नहीं जा सकते भाई। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की बात करूं, पैराडाइज रीगेंड की बात करूं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन मिल्टन के ऊपर जितनी भी क्रिटिकल कमेंट्री हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना। सैमसम एग्नोस्टिस का यॉनर क्या है, कॉमर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करते हैं तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के साथ बिगनिंग में ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन एसोसिएटेड हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स गाइस, डोंट मी टेक रॉन्ग। हिंट दे रहा हूँ आपको कि ड्राइडन का एसोसिएशन और सैमुअल जॉनसन का एसोसिएशन मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ, मेटाफिजिकल पोइट्स के साथ क्या था, इंपॉर्टेंट है। जॉन डन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अब्राहम कॉले को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशा एंड हेनरी वॉगन। उसके बाद कैविलियर पोइट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट,
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यू क्लासिकल एज के अंदर Alexander Pope becomes very important, Dr. Samuel Johnson becomes very important, Jonathan Swift becomes very important, Joseph Addison and Richard Steele becomes very important, Thomas Gray, Elegy written in Country Churchyard becomes very important, Oscar Wilde becomes very important, Richard Sheridan becomes very important. तो अगर पोप की बात करें तो ऐसे ऑन मैन, ऐसे इन मैन नहीं, ऐसे ऑन मैन है. देखिए ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म और ऑन क्रिटिसिज्म में डिफरेंस है. ऐसे इन क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय पोप. एंड यू नो पोप वाज अ बिग गाय, he was celebrated as a satire writer, and you know, I'm not getting the name of that writer. He asserted in context of Pope that he was like a malevolent monkey sitting on a window and pouring ladle full of boiling oil on passers by. इतनी हार्श उसकी सटायर होती थी. द रेप ऑफ लॉक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जॉनसन के केस में अगर रेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जोनाथन स्विफ्ट की बात करें तो गुलिवर्स ट्रेवल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. द टेल ऑफ टब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली द बैटल ऑफ बुक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाइज 14th सेंचुरी से न्यू क्लासिकल एज तक का मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज ऑथर्स यू आर मोस्ट वेलकम टू माई क्लासेस. और मेरी ये पूरी कोशिश है, आई एम नॉट ब्लफिंग विद यू, आई एम नॉट शोइंग द फॉल्स कॉन्फिडेंस. मैं आपके साथ ये प्रॉमिस करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बिसाइड्स यू नो YouTube classes, I am a PhD research scholar and there are number of responsibilities to fulfill. तो टाइम मैनेज करना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये आपके साथ प्रॉमिस है कि मैं आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के दूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स के साथ डील करेगी. ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से एक हिंट ज़रूर मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है. ऑल राइट, तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस वादे के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा. आराम भी ज़रूरी है, मेंटल पीस भी ज़रूरी है, म्यूज़िक सुनना भी ज़रूरी है, खेल कूद भी ज़रूरी है, डोमेस्टिक चोर्स भी इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अबव ऑल you all are preparing for a prestigious post in J&K and the competition is cut throat. इन सारी चीज़ों से ऊपर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो 2-3 मंथ्स अपने आप को दे दीजिए और डेफिनेटली वो मंथ्स आपके करियर को चेंज कर देंगे. ऑल राइट, स्टे डिसिप्लिन्ड, बी स्मार्ट इन अप्रोच, क्योंकि हमारे सारे एग्ज़ाम्स एज यू नो ये फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं. और फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम को कंसेप्चुअली अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक दिस हार्ड नट. क्योंकि लिटरेचर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको डील करना एक स्ट्रेटेजिक वे में इम्पॉर्टेंट है, स्मार्टली इम्पॉर्टेंट है. क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. सेलेक्टिव इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाना और पॉलिश करके जाना है. You know, revision is very important part. एस्पिरेंट क्या करते हैं, हम सारे क्या करते हैं, मैं एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ. हम मटेरियल तो कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन हम रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं. सो रिवीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ एस्पिरेंट. तो रिवाइज करना सीखें, अपनी एक स्ट्रेटजी फॉर्म करें और उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग फॉलो करें. सक्सेस इज़ योर्स. बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी जेन्युइन इन योर एक्शंस. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.